We will discuss how to collect primary data using questionnaires. We talked something about the questionnaires and its development in our previous lecture, but we will be, repeating the similar concepts in a different way, and some more details about how to develop the questionnaires and how to use those questionnaires. Okay. So you all know that what is a questionnaire and its definition, but oh my God. Ignorant. We want to study collecting primary data using questionnaires. Okay, so here were the objectives of this session. Firstly, to understand what are the advantages and disadvantages of questionnaire as a data collection method, and to be aware of a range of self-administrators and interviewer administrator questionnaires. We will also tell you that how to combine different techniques within a research project. Okay, and after this you may be able to design, pilot, and administer a questionnaire to answer different research questions and the test your hypothesis and objectives, and you will be able to apply this knowledge, skills, and understanding gained to your own research project. Okay, so let us revise the general definition of the questionnaire. All techniques of data collection in which each person is asked to respond to the same set of questions in a predetermined order. Okay, so in that in a questionnaire format, we have a predetermined set of questions. So we share that questionnaire, that document that which contains a questionnaire. We share it to every participant, every respondent, and every participant which we select for the conduct of our study. It includes basically the structured interviews as well as telephone questionnaires, and the questionnaires in which questions are answered without any interviewer to be presented. Sir, Yes. sir, kindly accept the request. मेरे पास ना नोटिफिकेशन आता है, कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो सामने नहीं आती। एक फरमान क्या ही है, ठीक है। तो बात कर रहे थे कि रिस्पांस रेट क्या होता है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी क्या होती है, ठीक है। मगर ये है कि आपको पता है कि रिस्पांस रेट और आप कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने क्वेश्चनर्स की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि यू मस्ट design your questions, or you have to focus on individual items very carefully. Okay, so the way you design, you write the statements of your question are much more important. Okay, we have a group on the Facebook that's named as my SEM. It is developed by a professor of Malaysia. Okay, so someone put a question over there, and if you put that any question over there, very the responsible people and very the people of higher repute who have a greater services and contribution in the field of the research, they respond it on those pages and those posts. तो वहाँ पे एक पोस्ट थी कि स्टूडेंट ने कहा था कि आई हैव कलेक्टेड डेटा. Okay, so everything is fine. My questionnaire was very much fine because it yielded good reliability score and validity scores. ठीक है, बट ये है कि मेरे हाइपोथेसिस जो हैं वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गए सारे. तो व्हाट टू डू विद इट, ठीक है. आई हैव यूज्ड दिस इन दिस सॉफ्टवेयर. उसमें हमारे एक प्रोफेसर हैं मलेशिया के, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि बात यह है कि आपके जो है, अगर देखें, अगर आप एक क्वेश्चनर यूज़ करते हैं, उसकी अगर डेटा मतलब जो हम उसकी वैल्यूज चेक करते हैं जी, रिलायबिलिटी की, वो सही भी आ जाएं, मगर उनका जो है अगर हाइपोथेसिस से टेस्ट भी हो जाना, ये कोई मतलब है कि गारंटी नहीं है. उसके लिए और फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है,
समटाइम ये होता है कि आप जो आइटम्स यूज़ कर रहे हैं या जो वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, उनका आपस में लिंक थ्योरी से एस्टेब्लिश नहीं है, ठीक है? तो भी आपके प्रॉब्लम आ जाते हैं। फिर कभी-कभी ये होता है कि आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, वो आपने इस तरीके से मतलब लिखी हुई हैं, इतनी एम्बिगुअस हैं कि वो लोगों को समझ में नहीं आती, ठीक है? लोग उसको सही समझ नहीं पाते और इस वजह से भी वो जो है वो आपके जो रिस्पॉन्सेज़ हैं, वो आपके वैलिड नहीं आते। फिर उसके अलावा मतलब काफ़ी सारे और इश्यूज़ होते हैं जो उसके ऊपर असरअंदाज़ होते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर देखें अगर आपको जो है मैं एक क्वेश्चनेयर अगर दूँ या आप अगर जाते हैं अगर किसी डायरेक्ट किसी एम्प्लॉयी से आप जो है वो मतलब है कि क्वेश्चनेयर फिल कराते हैं, अगर वो आपको दे देता है तो आपको जो इन्फॉर्मेशन देगा, वो हो सकता है कि उस ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में और लीडर्स के बारे में थोड़ी बहुत जो है और वो सही इन्फॉर्मेशन दे दे। और अगर आप उसको ये बताते हैं कि जी कि आपकी जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन्ड होगी, ठीक है? अगर आप उसको क्वेश्चनियर ऐसे माहौल में देते हैं कि जिस माहौल में उसके लीडर्स और उसके सुपरवाइज़र सामने बैठे हुए हैं, तो नॉर्मली या तो वो फ़िल नहीं करते या अगर करेंगे तो फिर आपको जो है वो एक्चुअल ओपिनियंस नहीं देंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, सेटिंग्स का भी इश्यू होता है, मगर उससे अलावा जो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है, वो है कि आपके क्वेश्चन्स जो हैं, उसके जो आइटम्स हैं, वो सिंपल हों और समझ में आने वाले हों, ठीक है? और उसके बाद लेआउट ऑफ द क्वेश्चनियर फॉर्म ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरह लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एक फनल अप्रोच हम यूज़ करते हैं और फनल अप्रोच में हम क्या करते हैं कि हमने ये देखना होता है कि योर क्वेश्चनियर मस्ट स्टार्ट फ्रॉम you know the specific oh sorry general to specific and difficult to sorry easy to difficult ठीक है तो ये है कि आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमेशा लास्ट में मांगते हैं लोगों से और उसके बाद क्या है कि यू मस्ट क्लेरिफाई द पर्पस ऑफ द क्वेश्चन टू योर पीपल ओके यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन ये आप जिस तरह लास्ट टाइम बात की कि जो कवर लेटर होगा वो इट विल सर्व दैट पर्पस ओके देन यू हैव टू पायलट टेस्ट इट ठीक है पायलट टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो यूं इम्पोर्टेंट होती है कि जब आप डेटा जो है वो आप ले लेते हैं और अगर क्वेश्चन आप डेवलप कर लेते हैं तो क्वेश्चनियर को आप ऐसा नहीं है कि आप वो क्वेश्चनियर जो है वो सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें एक ही वक्त में। शायद तो आमतौर पे क्या होता है कि आपने क्वेश्चनियर बना दिया और फिर आपने मतलब है कि वन टाइम बनाया, बगैर पायलट टेस्ट के आपने क्या कर दिया सारे लोगों को ईमेल्स कर दी जो आपके पास डेटा सेट था या जितने लोगों के पास आपके पास ईमेलें मौजूद थी, आपने सबको भेज दिया। फिर क्या आता है प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? तो उसमें ऐसा ना करें आप। पहले आप पायलट टेस्टिंग क्या होती है कि पायलट टेस्टिंग ये होती है कि पहले आप जो है वो उनको थोड़े मतलब है कि थोड़े लोगों के ऊपर टेस्ट करते हैं, ठीक है? उनको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और उनको आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जो कि कंप्लीटली विलिंग हो और आपको उसके ऊपर फीडबैक दें। तो फिर वो आपको बताएँगे कि जी यहाँ पे ये लैंग्वेज के मसले हैं, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें इसके साथ मिलती नहीं है। वैसे भी वो कहते हैं कि जब भी आप क्वेश्चन कर लें अपने टीचर्स को भी दिखाएँ, उसके बाद अगर आपके ऐसे कलीग जो उनको जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट हो, उनसे भी आप उसको एक बार वेरीफ़ाई कराएँ, ताकि उसके फॉर्मेट से लेकर, उसकी लैंग्वेज से लेकर हर चीज़ जो है एक बार थोड़ी-सी वेरीफ़ाई हो। फिर अपने रिस्पोंडेंट्स के भी चंद बंदे उसमें वो कोशिश करते हैं कि 10 से 20-30 तक भी बंदे आप ले लें, तो उनकी आप डेटा ले लें और फिर जो है उनको आप चेक करें कि उन्होंने किस तरीके से उसको समझाया। क्योंकि एक प्रिंसिपल ये है कि जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो लोगों को समझ में आ जाए। फिर लोग जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो आपको समझ में आ जाए। तो इसके लिए पायलट टेस्टिंग जो है वो ज़रूरी होती है कि अगर मिसाल के आपका 500 का सैंपल है, तो आप एक उसका भी सबसेट ले लेते हैं, 50 का, 100 का उस उनकी आप उनके ऊपर ये सारे टेस्ट करते हैं और फिर आप चेक करते हैं कि बाज़ का ये होता है कि कोई आइटम जो आपने लिखा है, वो लोगों को सही समझ में नहीं आ रहा, तो या तो उसको आप रिवर्ट करते हैं या उसको बाज़ डिलीट भी करना पड़ जाता है, ठीक है? तो एक फाइनल शेप में लाकर फिर आप वो पूरी मेन स्टडी जो है आप कंडक्ट करते हैं। तो पायलट टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? देन यू हैव टू go ahead with proper planning and you know then you have to execute with a very you know प्लानिंग एंड वेरी केयर कैसे प्लानिंग से मुराद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों के साथ जो है वो मिसाल तो आप क्वेश्चनेयर भेजते हैं ना आप टाइमलाइन एक डेवलप करते हैं कि मैंने इस सेक्शन में जो है या इस ग्रुप को या इस सेक्टर में या इस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इस वीक में डेटा भेजना है या वहाँ से डेटा कलेक्ट करनी है और फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में इस वीक में करनी है और इसमें इसमें करनी है फिर आप एक टाइम फ्रेम जो है वो रखते हैं उनके मतलब रिमाइंडर्स का और रिव्यू का। हो सकता है कि 1 हफ्ते के बाद आप दोबारा रिविज़िट करें उनको
एज एक रिमाइंडर दें, ठीक है। हो सकता है फिर 2 हफ्ते के बाद दूसरा आप रिमाइंडर रखें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 रिमाइंडर से ज़्यादा आप नहीं दे सकते, ठीक है। अगर आप बार-बार लोगों को तंग करेंगे तो लोग आपसे परेशान हो जाएँगे। आप ये समझें कि अगर जिसने 2 रिमाइंडर से आपको डेटा नहीं दिया तो वो आप समझें कि ये आपको नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि बंदे को ज़बरदस्ती और परेशान करके आप डेटा नहीं ले सकते। बाद औक़ात जो है लोग आपको सिंपली वो कह देते हैं कि वी आर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन योर स्टडी, ठीक है। समटाइम्स दे डोंट डू, दे जस्ट कम्युनिकेट विद यू बाय डिलेइंग देयर रिस्पॉन्सेस, ठीक है। सो यू हैव टू एज़ अ रिसर्चर यू हैव टू बी वेरी मच रिस्पेक्टफुल टू योर रिस्पोंडेंट्स, ओके। क्वेश्चनर हम कब यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने कहा था कि अगर आपकी जो स्टडी है वो एक्सप्लोरेटरी है तो मे बी द क्वेश्चनर मेथड मे नॉट बी गुड फॉर यू, ओके। क्योंकि उसमें आप जो है क्वेश्चनर के लिए ज़रूरी है कि यू हैव टू गो फॉर अ लार्जर नंबर ऑफ ओपन क्वेश्चंस, ओके, बिकॉज़ यू वांट टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़, ठीक है। और उसमें ये है कि हमें आपको ना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से मुराद ये है कि जब आपको वेरिएबल्स का नहीं पता, आपको सिर्फ प्रॉब्लम का पता है, उसके कॉजेज़ का और उसका जो आपको नहीं पता, मॉडल नहीं डेवलप कर पा रहे, ठीक है? तब आप एक्सप्लोर करते हैं और फिर आप जो है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चन्स हैं वो पूछ रहे हैं, ठीक है? उनको फिर आप जो है आंसर जो है वो या तो ओपन एंडेड क्वेश्चनियर रखते हैं या आप इंटरव्यू मेथड के ज़रिए करते हैं। फिर आपको यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर क्वेश्चनियर जो है एटीट्यूड्स, ओपिनियन, बिहेवियर, इमोशंस, इनको जो है वो टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है? और एक्सप्लेनेटरी एनालिटिकल रिसर्च में भी हम जो है वो क्योंकि रिलेशनशिप मेज़र करना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि व्हिच थिंग कॉजेज़ व्हिच थिंग, ठीक है? और हू इज़ कॉज्ड बाय व्हॉम एंड व्हाट इज़ द नोमोलॉजिकल नेटवर्क ऑफ द डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है? कि हम समझते हैं कि एक वेरिएबल है, वो कोई भी वेरिएबल आप ले लें, उसकी ना एक फैमिली रिलेशनशिप होते हैं लोगों मतलब कि उसके साथ, दूसरे वेरिएबल्स के साथ, ठीक है? और आप फैमिली कह दें या आप समझें कि एक मतलब वो इट इज़ अ नेटवर्क, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ मतलब ग्रेटर नेटवर्क, ठीक है? एंड आप नेटवर्क ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। रिलेटेड होने से मुराद ये नहीं है कि नेगेटिवली या पॉजिटिवली, मगर दोनों तरफ से हो सकता है, ठीक है? मतलब एक चीज़ का होना बाज़ औक़ात ज़ाहिर करता है, दूसरी चीज़ का ना होना ज़ाहिर करता है, ठीक है? तो अगर आप समझते हैं यू आर वेरी मच हैप्पी, तो इट मीन्स यू आर नॉट सैड, ठीक है? तो आप आपका हैप्पीनेस जो है वो सैडनेस से क्या है इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है? तो रिलेशनशिप तो हुआ, बेशक नेगेटिव ही है, ठीक है? तो अगर आप ये समझते हैं कि जो है वो रिलेशनशिप का मकसद हमेशा पॉज़िटिव हो, ये ज़रूरी नहीं होता। तो ये है कि जब आप एक किसी भी वेरिएबल को मैंने कहा लेते हैं तो वो एक उसका एक फैमिली ट्री बनता है, एक नेटवर्क बनता है, उस नेटवर्क को हम नोमोलॉजिकल नेटवर्क कहते हैं। तो उस वेरिएबल्स के दरमियान में एक-दूसरे के ऊपर जो है जब हम कॉज़ एंड इफ़ेक्ट चेक करते हैं, जब हम इम्पैक्ट चेक करना चाहते हैं, तो हम ऐसी रिसर्च करते हैं जिसको हम एक्सप्लेनेटरी या एनालिटिकल कहते हैं। तो उनके लिए भी हमारे पास जो है क्योंकि जब आप हम रिलेशनशिप्स को और इम्पैक्ट को हमेशा स्टैटिस्टिकल टर्म्स में मेज़र करना चाहते हैं और तो उस वक़्त जो है हमें बीटा वैल्यूज़ चाहिए होती हैं और उनकी सिग्निफिकेंस चाहिए होती है और उनका वेरिएंस देखना होता है कि कितना वेरिएंस जो वो शो करते हैं। तो उनके लिए हमें लार्जर सेट ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए होता है और जो कि आप क्वेश्चंस के ज़रिए ही हासिल कर सकते हैं। तो क्वेश्चनियर्स की किस्मों को हम अगर रिवाइज़ करें कि क्वेश्चनियर्स किस किस्म के हैं, एक तो हैं सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चंस, ठीक है? और दूसरा इंटरव्यूअर एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनियर, ठीक है? सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड से मुराद क्या है कि जब आप ऑनलाइन के ज़रिए लोगों को देते हैं, पोस्टल मेथड के ज़रिए भेजते हैं और उनके पास जो है वो डिलीवरी मतलब दे के आते हैं और फिर जाके कलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये आप समझिएगा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चन हो गए और इंटरव्यूअर एडमिनिस्ट्रेटेड से मुराद ये है कि जब व्हेन द रिसर्च इज़ अवेलेबल before the respondents while the respondent is filling up the questionnaire or responding to the answers, ठीक है। समटाइम आप टेलीफोन के जरिए जो है वो उनसे डेटा ले लेते हैं, आप उनसे सवाल पूछते जाते हैं और उनके जो है ऑप्शन बताते जाते हैं और जो वो ऑप्शन सेलेक्ट करता है वहाँ आप टिक करते जाते हैं। फिर एक और होते हैं कि जी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन इंटरव्यू हैं और जहाँ पे आपके पहले से क्वेश्चन मौजूद हैं, आप इंटरव्यू फॉर्मेट में ले रहे हैं और मगर ये है कि वो स्ट्रक्चर्ड लेवल के हैं, ठीक है। तो या बाज़ औक़ात ये होता है कि क्वेश्चनियर आप डिज़ाइन करते हैं और उन लोगों के लिए जो कि खुद उस क्वेश्चनियर को पढ़ नहीं सकते, ठीक है? या उनकी एजुकेशन नहीं होती इतनी, तो फिर आप क्या करते हैं, आप ऐसे मौकों पर जो है
उन लोगों से जाके पूछते हैं और उनको आप चीज़ें बताते हैं और उनके सामने आप क्वेश्चन फिल करते हैं। तो ये भी आप समझिए कि एक तरह से इंटरव्यूअर एडमिनिस्ट्रेटर या रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेटर क्वेश्चनियर हुए। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटर से मुराद है कि जब हमको भेज देते हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम पे वो करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन क्वेश्चनियर को भी बता दें आपको कि किस तरह हम डेवलप करते हैं, गूगल फॉर्म्स को यूज़ करते हुए ख़ास तौर पर और उनको हम कैसे डेवलप करते हैं, थोड़ा-सा मैं आपको ओवरव्यू वो दूँगा ताकि अगर कोई बंदा बनाना चाहता है बाद में तो वो उसके ऊपर जो है थोड़ी बहुत उसकी प्रैक्टिस कर लें। Okay, the choice of the questionnaire is influenced by different factors which are related to firstly the characteristics of respondents from whom you wish to collect the data. ठीक है, यानी आपके रिस्पॉन्डेंट्स किस लेवल के हैं। ठीक है, मतलब ये है कि अगर रिस्पॉन्डेंट्स आपके मैनेजर स्टाफ के हैं, नॉन मैनेजर स्टाफ के हैं या टॉप मैनेजमेंट लेवल के हैं, तो आप उनके हिसाब से ही लैंग्वेज की सिलेक्शन, वर्ड्स की सिलेक्शन और क्वेश्चन की सिलेक्शन करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रीचिंग पर्टिकुलर पर्सन एज अ रिस्पॉन्डेंट, ठीक है, कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाज़ औक़ात आप ये देखते हैं कि कुछ लोगों के लिए की डेटा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है और वो आपकी थ्योरी के साथ बहुत रिलेटेड होते हैं, इसलिए आप कोशिश करते हैं कि उन तक जो है ज़रूर पहुँचे। ठीक है? इम्पोर्टेंस ऑफ आंसर्स नॉट बीइंग कंटामिनेटेड और डिस्टॉर्टेड, ठीक है? कि क्वेश्चंस जो हैं आप जो क्या नाम है ज़हन में रखिएगा कि आंसर्स जो हैं वो जो लोग दें और वो क्लियर हो, क्योंकि क्लैरिटी हो, अपनी क्लैरिटी डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है? फिर साइज़ ऑफ द सैंपल यू रिक्वायर फॉर एनालिसिस टेकिंग इंटू द अकाउंट ऑफ द रिस्पॉन्स रेट, ठीक है? ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप कोई मतलब एनालिसिस करते हैं और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, तो उस वक़्त जो है वो इट इट वेरीज़ विद रिगार्ड टू द साइज़ ऑफ योर सैंपल, ठीक है? या सैंपल साइज़ जिसको हम कहते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा सैंपल साइज़ है तो उसमें आपके रिज़ल्ट जो हैं वो बेहतर आते हैं और मतलब टू बिग जो है शुड नॉट बी देयर और इसके लिए आपको आपको पता है एक अगेन मैंने कहा कि ये एक नेगोशिएटेड बात है और इसके ऊपर जो है काफ़ी लोगों ने क्या है कि जी व्हाट इज़ द एक्यूरेट और व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट सैंपल साइज़, ठीक है? तो इसमें बहुत से लोगों ने बहुत सी डिफरेंट बातें की हुई हैं, कुछ लोगों ने फार्मूला दिए हुए हैं, ठीक है, नॉन पब्लिशन और अननोन पब्लिशन के लिए और कुछ लोगों ने जस्ट टेबल्स प्रोवाइड की हुई हैं, जैसा सांदर ने टेबल प्रोवाइड की हुई है कि आप जो है वो मतलब कि आपकी पॉपुलेशन साइज़ कितनी है और उसके लिए आपको सैंपल कितना लेना चाहिए। और उसके अलावा ये है कि कुछ यहाँ पे ऑनलाइन जो है वो अ, पावर एनालिसिस के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो आपको कैलकुलेट करके देते हैं कि आप किस तरीके से जो है वो सैंपल साइज़ करते हो, ठीक है? तो जो भी है बहरहाल एक चीज़ के ऊपर सब मुतमिन हैं मुत्तफ़िक हैं कि सैंपल साइज़ इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप एंड फॉर एस्टेब्लिशिंग द importance of data and to achieve the power, the statistical power of your data analysis, ठीक है? तो इसलिए अगर यहाँ पे सैंपल साइज कम हो तो फिर उस डेटा की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के ऊपर सवालात उठाए जाते हैं, ठीक है? तो कोशिश करते हैं कि जो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डेटा जो है वो हासिल करें, रिस्पॉन्स हमारा जो है मतलब डेटा जो सैंपल साइज़ जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो सैंपल साइज़ मैटर करता है मगर कुछ रिव्यूअर जो हैं वो रिस्पॉन्स रेट के ऊपर भी मैयर मतलब है वो करते हैं फ़ोकस करते हैं कि आपका रिस्पॉन्स रेट क्या है। मिसाल के तौर पर देखें अगर आप 1000 लोगों को डेटा भेजते हैं, ठीक है? तो आपको रिस्पॉन्स मिलता है सिर्फ़ 100 बंदों का। तो अगर डेफ़िनेटली 1000 का सैंपल साइज़ आपने सिलेक्ट किया था अपनी पॉपुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए, उसके भी फिर 100 लोग जो हैं आपको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, तो ये 10% आपका जो है रिस्पॉन्स रेट है। तो क्या 10% लोग जो हैं वो रिस्पॉन्स रेट इनफ है आपका? तो इसका मकसद ये है कि आपने या तो जो मेथोडोलॉजी यूज़ की है लोगों तक पहुँचने की वो आपने एप्रोप्रिएट नहीं की। मिसाल के तौर पर रिस्पॉन्स रेट आपका लो तब आता है जब आप सिर्फ़ सिंपली ऑनलाइन जो है वो फॉर्मेट यूज़ करते हैं, तो भी लोग आपको जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते या आप किसी प्रोसीजर के तहत उन तक नहीं पहुँचते हैं, ठीक है? तो इसके लिए बेहतर होता है कि आप पर्सनली भी बाद औक़ात विज़िट करते हैं, तो आपके पास रिस्पॉन्स रेट जो है वो बेहतर आता है, ठीक है? तो उसके बाद ये है कि कुछ किस्म के क्वेश्चन्स आप पूछ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन्स आप नहीं पूछ सकते, ठीक है? ये आपको नहीं पूछने चाहिए और अगर वो पूछते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लोगों को इरिटेट करते हैं, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं जो कि अनएथिकल होते हैं, जो आपको नहीं पूछने चाहिए, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कितने क्वेश्चन्स आप पूछ सकते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ क्वेश्चनेयर क्या होनी चाहिए।
कुछ स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि अगर क्वेश्चनियर जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, तो भी लोग इंटरेस्ट जो है वो भूल जाते हैं, कि मतलब छोड़ देते हैं। तो इसके लिए फिर अगर आपके लिए मजबूरी होती है कि जी वो लेंथी क्वेश्चनियर करना, तो फिर उसके लिए ये करते हैं कि उस क्वेश्चनियर को 2-3 हिस्सों में बाँट देते हैं, यानी कि टाइम फ्रेम में बाँटते हैं। कि जी एक बंदों से मतलब एक एक मिसाल के तौर पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आप का ले लेते हैं डेटा, फिर मीडिएटर्स का ले लेते हैं, फिर डिपेंडेंट का ले लेते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद जो है वो लोगों से दोबारा मतलब है कि कॉन्टैक्ट करते हैं और दूसरे क्वेश्चन मतलब है एक ही लंबे क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तरीका ये होता है, अगर वो भी मुमकिन नहीं है क्योंकि लोगों के साथ बार-बार आप जो है कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश नहीं कर सकते और फिर इसमें ये होता है कि हमें ना मैचिंग के लिए कोई जो है कोडिंग करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर हमने एक क्वेश्चनियर है, उस क्वेश्चनियर को मैंने कहा 3 में बाँटा, तो हमने कहा जी क्वेश्चनियर ए, बी, सी, ठीक है? अब रिस्पोंडेंट जो है 1, 2, 3 ये रिस्पोंडेंट हैं जिन्होंने कुछ मतलब है कि पहले क्वेश्चनियर ए फिल करके दिया, फिर क्वेश्चनियर बी फिल करके दिया, फिर क्वेश्चनियर सी फिल करके दिया। क्योंकि आप उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो नहीं लेते, मिसाल के तौर नाम वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं लिखते, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चनियर है जो क्वेश्चनियर बी है ये और ये क्वेश्चनियर ए जो है ये रिस्पोंडेंट 1 ने भरा है और रिस्पोंडेंट 2 ने भरा है, इनके जो पहले जो जो आपको मिले हैं, उनका मैच कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने कोडिंग जो है वो की हुई होती है, ठीक है? तो हम डिफरेंट कोड्स यूज़ कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर हम उनको बता सकते हैं कि आप अपने नाम का जो है वो पहला और आखिरी नंबर ले लें मतलब दे दें क्या नाम है ये लेटर लिख लें, ठीक है? या अपने पहला नाम के पहले हिस्से का यानी फर्स्ट नेम का लेटर और सेकंड नेम का फर्स्ट लेटर आप लगा दें। फिर उसके साथ कोई नंबर आप उनसे पूछ सकते हैं कि रोल नंबर दे दें या रोल नंबर या नहीं, इस तरह की चीज़ नहीं सीख सकते जिससे उनकी आइडेंटिफ़िकेशन ज़ाहिर होती हो। क्योंकि जब भी आप लोगों की आइडेंटिफ़िकेशन को ज़ाहिर करेंगे, तो लोग जो हैं आपको सही से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ठीक है? और वो जो है वो काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो शो शो नहीं करते। उसके बाद the choice of questionnaire depend on some other things as well, which are the time available to complete the data collection. ठीक है? अच्छा टाइम के हिसाब से ये है कि देखें आपने जब भी आप क्वेश्चनर फिल करते हैं तो पायलट स्टडी में हम लोग ये भी चेक करते हैं, नोट करते हैं कि एक क्वेश्चनर फिल करने में एक बंदा कितना टाइम लगाता है, ठीक है? तो हम जो है वो एक खाना जब आप अपनी डेटा शीट डेवलप करते हैं अपनी रिस्पॉन्स शीट तो उसमें हम एक कॉलम जो है वो बनाते हैं कि टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चनियर, ठीक है? तो एक बंदा आपको 10 मिनट में फिल पूरी करके देगा, एक 20 मिनट लगाता है, एक लगाता है। तो आप उसमें भी चेक करेंगे कितना जो है वो टाइम एक बंदा आपके उस ऊपर फोकस कर सकता है, ठीक है? फिर टाइम की अवेलेबिलिटी जो है वो भी वेरी करती है रिस्पोंडेंट टू रिस्पोंडेंट। अगर स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि वो आपको ज़्यादा टाइम दें, अगर आपके अपनी क्लासेस के हैं और अपने लोग हैं तो हो सकता है वो ज़्यादा टाइम दे दें, ठीक है? और बाज़ जो है लोग आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ख़ास तौर पर जो हाइली प्रोफेशनल लोग हैं या टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, वो आपको टाइम जो है वो नहीं देते। हाँ, मगर एक चीज़ ज़रूर है कि इन लोगों से अगर पहले से टाइम ले लिया जाए, ठीक है? तो वो फिर आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है फ़िल करके देते हैं, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आप एक प्रोफ़ेशनल बंदे से के पास डायरेक्ट चले जाएँ और उसके ऑफ़िस में आ जाएँ, सर ये फ़िल करके दें और उस बंदे की कोई और जो है अपॉइंटमेंट्स हों, तो वो आपको फुल्ली तौर पर जो है इसके ऊपर फ़ोकस नहीं कर कर सकेगा, ठीक है? तो इस वज़ह से उनके पास टाइम नहीं होता। मगर ये है कि अगर आप पहले से अपॉइंटमेंट ले लें और फिर उनसे ले लें, तो फिर आपके जो है वो टाइम फ्रेम मिल जाता है। मगर आपको पता है कि हर बंदे से अपॉइंटमेंट लेते जाओ और फिर लेके जाओ, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए एज़ अ रिसर्चर टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है? उसके बाद फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एंट्री, ठीक है? फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को भी आपने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि यही वजह है कि स्टूडेंट्स जो हैं या हमारे जो रिसर्चर्स हैं, वो क्योंकि दे कैन नॉट ट्रैवल टू मच फॉर द सेक ऑफ फॉर द पर्पज़ ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है? तो ये ज़रूरी है कि हम ये देखें कि अगर डेटा कलेक्शन में हमारे पास कितना टाइम लगेगा, ठीक है? अगर हम रिस्पोंडेंट्स के पास जाते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे हमें विज़िट करना पड़ता है, तो आया वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है? और उसके लिए क्या आप फंडिंग
कहीं से ले सकते हैं, क्या आपकी यूनिवर्सिटी फंड कर सकती है, क्या आपको हायर एजुकेशन कमीशन फंड कर सकती है, या आपके टॉपिक से रिलेवेंट जो इदारे हैं, ठीक है, और वो आपको फंडिंग दे सकते हैं आपकी रिसर्च के लिए, या आपकी पब्लिकेशन से रिलेटेड, अगर आप किसी जर्नल के लिए पब्लिश कर रहे हैं, या किसी कॉन्फ्रेंस के लिए कर रहे हैं, या किसी और इदारे के कोई मकसद के लिए कर रहे हैं, तो वो आपको फंडिंग के लिए रेडी हो सकते हैं। नहीं, अगर वो फंडिंग आपको आप कहीं सिक्योर कर सकते हैं, तो जो है आप जो है वो कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट ज़रूर ले लें। नहीं तो फिर हमें क्या करना होता है कि अपनी जो बजट है उसके मुताबिक हमने क्वेश्चनर को या सैंपल को जो है वो बनाना होता है, कि जी वो मतलब ऐसा हो, ऐसा क्वेश्चनर हो, ऐसे सैंपल साइज या सैंपलिंग फ्रेम हम लें जिसको हम खुद जो है मैनेज कर सकें विद इन आवर ओन बजट। ठीक है, और उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरव्यूअर एंड द फील्ड वर्कर्स टू असिस्ट। एक चीज़ ये ज़रूरी है थोड़ी सी, जो प्रोफेशनल लेवल की स्टडीज़ होती हैं और ख़ासतौर पर टीम वर्क होता है, तो उसमें हम ऐसा करते हैं कि हम एन्यूमरेटर्स जो है वो अपॉइंट करते हैं या असिस्टेंट्स अपॉइंट करते हैं, जो कि हमें क्वेश्चनर फिल कराने में और उसमें डेटा कलेक्शन में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और वो लोग जो हैं जो कि आपके साथ जो है फील्ड में विजिट भी करते हैं और इस तरह की चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आया उन अगर आपको कोई इस तरह का आपके पास प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्या ये ऐसे लोग आप के पास अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे? ठीक है? आपकी जो ग्रेजुएशन लेवल की स्टडीज़ में जो है स्टूडेंट्स खुद ही करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। मगर जब आप कोई ग्रेटर लेवल का प्रोजेक्ट करते हैं थोड़ा-सा, और उसमें आपको फील्ड विज़िट्स होती हैं, तो फिर आपको सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, और वो उन सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि आपको बड़ी टेक्निकल होती है। ठीक है? और उसके अलावा आपको एक चीज़ ये है कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को भी या रिसर्चर्स को डेटा एनालिसिस में भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और उसकी इंटरप्रिटेशन में भी ज़रूरत पड़ती है, लैंग्वेज के इश्यूज़ में ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ें भी आपने मद्देनज़र रखनी होती हैं। यहाँ एक और चीज़ भी मैं बताऊँ कि चॉइस ऑफ क्वेश्चनियर्स में, so what data we need to collect, you know, if we have explanatory research, okay, then we need to establish relationship between the variables, okay, or we have to answer if we are going to establish or trace and assess the relationship between different variables. So we have to understand that which variables are the dependent variables, okay. Then we must also know that which are the independent variables and what variables are there as an extraneous variable, it means the mediators or the moderators. So this is very important to know कि आपने वो किस तरीके से डेटा जो है वो करना है। तो ये है कि हमारा जो मॉडल होगा उसके मॉडल्स के जो हमारे वेरिएबल हैं वो चाहे इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो, मीडिएटर हो, मॉडरेटर हो, वो हमने आइडेंटिफाई करने हैं और उसके मुताबिक हमने वो क्वेश्चनियर जो है मतलब डेवलप करने हैं, और जिसमें उन सारे के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मगर उसके अलावा ये चीज़ ज़रूरी है कि बाज़ का जो हम एक डेमोग्राफिक डेटा लेते हैं, और वो डेमोग्राफिक डेटा जो है वो हमारे उन वेरिएबल्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असरअंदाज हो रही होती है। ठीक है? और उसमें ये है कि हम कुछ एनालिसिस जो है, हमेशा हम 2 किस्म का एनालिसिस करते हैं। कुछ एनालिसिस जो है वो बेसिक एनालिसिस हमने करनी होती है। वो बेसिक एनालिसिस वो हैं जो कि आपका जो प्राइमरी रिसर्च क्वेश्चन है, उसको आंसर करने के लिए आप जो है वो चेक कर रहे हैं, या जो प्राइमरी थ्योरी है उसको टेस्ट करने के लिए आप चेक कर रहे हैं। मगर हमें सब इस पूरे मरहले में जी, जी। आवाज़ आ रही है? जी सर, आप करें आप। जी। तो इसमें आपने ये चेक करना है कि पूरे इस मरहले में आपके पास जो है, मैं बता रहा था कि आपके पास जो डेटा है, वो आपने 2 तरह की कलेक्ट करनी है। एक तो वो डेटा जो कि आपको प्राइमरी रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने के लिए है। मिसाल के तौर पर आपकी जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, उसको रिप्रेज़ेंट करने वाले क्वेश्चन्स आप ऐड करते हैं, ठीक है? और उसमें जितने भी आपके वेरिएबल जिस तरह हमने बताया, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, वेरिएबल, मॉडरेटर, कंट्रोलर वेरिएबल, या जो भी आप ऐड करते हैं। अलावा भी आपने एक और चीज़ें भी करनी है जिसको हम एडिशनल एनालिसिस कहते हैं, ठीक है? और एडिशनल एनालिसिस की भी हम डेटा जो है वो लेते हैं, और उसमें ये है कि बाज़ औक़ात वो हमने चेक करना होता है कि आया जो है वो हमारा जो डेटा है वो जेंडर के हिसाब से किस तरह डिफरेंट है, हमारा जो डेटा है वो एजुकेशन के हिसाब से किस तरह वेरी करता है, और क्या हमारे डेटा के अंदर, हमारे सैंपल के अंदर क्या इंडिपेंडेंट ग्रुप्स बन सकते हैं, ठीक है? अगर मिसाल के तौर पर अगर हम एज ग्रुप्स में अगर उनको बाँट दें, तो फिर हमारी डेटा के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, या उन लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर फ़र्क पड़ेगा,
या हम जो है वो टाइप ऑफ पोजीशन के हिसाब से चेक करते हैं, तो क्या फर्क उसके ऊपर फर्क पड़ेगा? क्या हम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम डेटा को चेक करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं, तो क्या वो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मिसाल के तौर पर एक वेरिएबल अगर आप प्राइवेट सेक्टर के लोगों से चेक करते हैं या पब्लिक सेक्टर के लोगों के उनसे रिस्पॉन्स लेते हैं, तो हो सकता है कि किसी एक वेरिएबल के ऊपर दो जो सेक्टर के वाइज भी लोगों के रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट आए, ठीक है? तो हो सकता है आप बाद में कुछ एडिशनल एनालिसिस सेक्टर के हिसाब से भी कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के हिसाब से। फिर अगर आपके पास कंट्री कल्चर का डिफरेंस भी हो सकता है कि आपके पास रिस्पोंडेंट्स डिफरेंट कंट्रीज के हैं, डिफरेंट कल्चर्स के हैं, तो भी आप उसको एज ए कल्चर को भी एज ए वेरिएबल ले सकते हैं। हो सकता है कि जो लिंग्विस्टिक जो डिफरेंस है कि एक बंदे की जो लैंग्वेज का जो फर्क है, वो भी आपके रिस्पॉन्स पैटर्न को, या एथनिक ग्रुप जो है वो भी आपके रिस्पॉन्स पैटर्न के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। तो आप उनसे भी जो है वो उसको भी आप अपने क्वेश्चंस में ऐड कर सकते हैं। तो आपने ये चेक करना है फॉर फाइनलाइजिंग द क्वेश्चनेयर कि अगर जो प्राइमरी आपके वेरिएबल्स हैं, उसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो आपके इन वेरिएबल्स के ऊपर या आपकी जो है डेटा के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, ठीक है, या डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके हम एडिशनल एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। वो एडिशनल एनालिसिस डिफिकल्टी मतलब डेफिनेटली हमारे जो प्राइमरी जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है उसको सपोर्ट करेंगे या उसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये कि जी ये भी आपके लिए मतलब है कि ये देखना पड़ता है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू हैव टू कलेक्ट, ओके। तो हमने जो है हमने देखना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल व्हिच वी हैव, और उसमें जिस तरह पहले हमने कहा था कि एक लिहाज से तो अब ये एक तो हमने ये कैटेगरी की हुई है ना कि इंडिपेंडेंट कौन सा, डिपेंडेंट कौन सा और मीडिएटर मॉडरेटर कौन सा, मगर हमने वेरिएबल्स की जो डेफिनेशन ये भी करनी है कि जी आया वो या तो एटीट्यूड को जाहिर करते हैं या बिलीफ को जाहिर करते हैं या बिहेवियर को जाहिर करते हैं या हमारे एट्रीब्यूट को जाहिर करते हैं या हमारे इमोशंस को जाहिर करते हैं, ठीक है। तो हमारे इंटेंशंस को जाहिर करते हैं या मतलब ये अगेन इस तरीके से एक साइकोलॉजिकल जो है वो इनकी डिवीजन होती है, ठीक है, और वो डिवीजन जो है उनकी डेफिनेशन के हिसाब से होती है, ठीक है। कि एटीट्यूड कौन से हैं, हमने कहा एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड इसके हाउ यू फील समथिंग, ठीक है, और वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज अ फीलिंग सेगमेंट, ठीक है। एटीट्यूड की ये चीजें हो गई। हालांकि एटीट्यूड के अगेन आपने पढ़ा होगा कि 3 डायमेंशन है, ठीक है। बहरहाल एटीट्यूड इज हाउ यू फील समथिंग अबाउट समथिंग, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बिलीव क्या है, व्हाट यू थिंक और बिलीव वेदर इट इज समथिंग इज ट्रू और नॉट, ठीक है। एंड बिहेवियर क्या है, बिहेवियर इज हाउ एक्चुअली यू डू, how actually you respond, how actually you react to certain object or certain person or thing, ठीक है। एट्रीब्यूट की क्या है, एट्रीब्यूट है your characteristics, the difference, the point of difference, okay। So people may have a different attribute, say for example gender is also an attribute, it is your characteristics, abilities different जो है आपकी हो सकती हैं, और कलर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं जो वो आपके एट्रीब्यूट्स आप या कैरेक्टरिस्टिक्स उनके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एटीट्यूड से रिलेटेड जो है आपके जब आप एटीट्यूड मेजर कर रहे हैं तो उसके फिर कौन से और किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं और कौन से रिस्पॉन्स पैटर्न हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एटीट्यूड को मेजर करने के लिए आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ डू यू फील अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर शुड प्लेस देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट बिफोर देयर ओन, ठीक है। आपने क्वेश्चन पूछा और आप ये पूछना चाहते हैं कि हाउ डू यू फील अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर शुड प्लेस देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट बिफोर देयर ओन इंटरेस्ट, ओके। तो आप इसमें से कहते हैं जी कि कोई भी एक अप्रोप्रिएट जो है बॉक्स को आप क्लिक करें, ठीक है, या उसको आप क्रॉस करें या उसको आप चेक करें या जो भी है अपने ऑप्शन दिए हुए। तो उसके कौन से हो सकते हैं, वेरी करते हैं स्ट्रांगली एग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री, और स्ट्रांगली एग्री और उसको आप 5 देते हैं, 4 3 2 और 1 देते हैं, ठीक है। इसकी आप नंबरिंग करते हैं। तो ये आपका जो है इस तरीके का एटीट्यूड की मेजरमेंट है। फिर आप एक जो है सवाल पूछ सकते हैं कि बिलीफ के हवाले से, अगर आप बिलीफ को मेजर कर रहे हैं
So in general, do financial advisors place their clients' interest before their own? देखिए सेम चीज है, सिर्फ द स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट आपने चेंज की है, तो उससे जो है आपका अंदाजा हो जाएगा कि वो किस तरीके से है। यहाँ पे आप जो है उनका बिलीफ लेना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं कि डू फाइनेंशियल एडवाइजर प्लेस देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट बिफोर देयर ओन, ठीक है। ये वहाँ उनका आप एक बिलीफ सेगमेंट या उनका आप वो चेक कर रहे हैं, तो वो फिर उसमें क्या करेंगे, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवाइजर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी आपको बताएंगे। ये उनका अपना ओपिनियन होगा या एक बिलीफ होगा, ठीक है। वो कहेंगे ओके जी, ऑलवेज यस, यूजुअली यस, समटाइम्स यस, सेल्डम यस और नेवर यस, ठीक है। अब देखें, नेवर, सेल्डम, समटाइम, यूजुअली और ऑलवेज, ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है। बात समझ आ रही है? तो एक यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि जब मैंने इस तरह का एक क्वेश्चनर डेवलप किया था और किसी को भेजा था, तो वहाँ पे लोगों ने हमें ये कहा कि जी ओके, जब आपने नेवर और ये सेल्डम की बात करते हैं ना, ये भी इतने ज़्यादा वो मतलब 100% क्लियर नहीं है कि व्हाट डू यू मीन बाय द नेवर, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑलवेज, व्हाट डू यू मीन बाय द समटाइम्स, ठीक है। तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करना चाहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी आप इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव मेजर्स यूज करें। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं वंस इन अ वीक, ठीक है, आप कहते हैं जी वंस इन अ मंथ, ठीक है, या आप कहते हैं जी वंस इन अ ईयर। मतलब इस तरीके से आप जो है वो टाइम फ्रेम दे दें, ताकि बंदे को पता चले कि ये फ्रीक्वेंसी जो है इनकी क्या हो सकती है। तो आप कोई भी टाइम फ्रेम जो है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बाद आप उससे चेक करते हैं। बिहेवियर के टाइप, जो बिहेवियरल वेरिएबल्स होते हैं और उनके हम किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, हाउ ऑफन डू यू प्लेस योर क्लाइंट्स इन प्लेस बिफोर योर ओन, ठीक है। अब एक बंदे से आपने उनके बिहेवियर के बारे में, उनकी फ्रीक्वेंसी आपने चेक की, और उसमें देखें कि इन्होंने टाइम के हिसाब से वो दिया, और अपने उस टाइम को परसेंटेजेस में चेक किया। ओके जी, 90% ऑफ माय टाइम, और 20 to 39% ऑफ माय टाइम, और 40 to 59% ऑफ माय टाइम, 80 to 100% ऑफ माय टाइम। अब देखिए यहाँ पे ना, अगेन जो हम मेजर करेंगे, इनको हमने अपने नंबर दिए होंगे, ठीक है। ये 5 को डिनोट करेगा, ये 4 को, 3 को, 2 को, 1 को, ठीक है। तो ये चीज़ होगी कि हम फिर जब हमारे पास जो है जब हम एसपीएसएल में डेटा पुट करेंगे, तो इनके अगेंस्ट हमने नंबरिंग दी हुई होती है, और फिर हमारे जो एनालिसिस है उन नंबर्स को जो है वो पकड़ते हैं और उनके मुताबिक एनालिसिस करते हैं। अगर किसी के पास क्वेश्चनियर उसके डेवलप हो जाते हैं, तो सेकंड टू नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम एसपीएसएस के ऊपर काम कर सकते हैं और आपकी जो है डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारा ये जो सैटरडे है वो तो 19 को है, तो हम 26 दिसंबर को जो है एसपीएसएस में उनका डेटा जिस बंदे ने कलेक्ट करके दिया, तो हम उसका डेटा एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, एट्रीब्यूट कौन से हैं, और एज वगैरह हो गई, और जेंडर या इस तरह की चीज़ें वो हमारे एट्रीब्यूट्स में आते हैं। और हाउ ओल्ड आर यू, प्लीज टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स, ठीक है। उसमें से आप कोई एक जो है वो चेक करते हैं। अगेन इनकी भी जो हम ये करते हैं। और एक चीज़ ये बता दूं कि ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं, इनकी हम डेफिनेटली सिग्निफिकेंस लेवल या इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स हम लेते हैं, ठीक है। जबकि ये जो हैं हमारे एट्रीब्यूट्स जो हैं, इनके हम जस्ट डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स जो है वो देते हैं। हम बताते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, बताते हैं जी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं, ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि हम फिर इनके ग्रुपिंग के अंदर मीन्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि इनके मीन्स जो है वो हम मालूम भी करें और मीन्स हम कंपेयर भी करें, ठीक है। Okay. Then the question is how to ensure that the data collected will enable the research questions to be answered. ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपकी जो डेटा है वो आपके लिए बेनिफिशियल है और आपके क्वेश्चन को आंसर करेगी, ठीक है। एक मिनट। Structured questions में there are certain interval skills. The most popular is the Likert response scale, no? In which we assign certain numbers, numerical figures to feelings. Okay.
कि जी मिसाल 1 फॉर स्ट्रांगली डिसएग्री एंड 5 फॉर स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। ये इंटरवल स्केल है कि आप एक किसी भी एक लेवल पे आके अपने आप को, अपनी बात को जो है वो रेट करते हैं और रिस्पॉन्ड को आप रिकॉर्ड करते हैं कि अगर आप एग्री हैं तो कितना एग्री हैं, फुल्ली एग्री है, 100% एग्री है, तो यू टेक 5, ठीक है। अगर आप नहीं रिस्पॉन्ड करना चाहते, वेदर यू आर नॉट कंफर्म वेदर यू हैव टू रिस्पॉन्ड इट आर नॉट, ठीक है, तो देन यू सिलेक्ट 0.3, ठीक है। तो डिसएग्री है, डिसएग्री को भी फर्दर आप क्लासिफाई कर लेते हैं 2 या 1 में। अब यहाँ पे ये देखें, आपको ना वैरायटी मिलेगी। बहुत से पेपर ऐसे होंगे जिन्होंने ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल, और 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल भी चलता है। और यहाँ कुछ क्वांटिटेटिव जो रिसर्चर्स है वो कहते हैं जी कि 7 पॉइंट जो लिकर्ट स्केल है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो वैल्यूज मिलती हैं, रिजल्ट्स मिलती हैं, ठीक है। और इसमें कुछ इससे भी ज़्यादा भी वो करते हैं, मगर मिनिमम 3 जो है वो आनंद, आई एम गोइंग टू रिमूव यू, ठीक है। You must know where you are sitting, and you must know and you must ensure that your mics are off, and ये जो है इस तरह की चीज जो है आपके पास, there is no any guys for such things, ठीक है।